So there are certain legal factors within India which won't propel the growth of this business in India. But now let's go one layer deeper. कभी आपने सोचा यार अंबानी बड़ा फेमस था. अंबानी were always onto the scene. The Tatas were always onto the scene. The Birlas were always onto the scene. Where did Adani came from? ये अडानी अचानक से इतना फेमस कैसे हो गया? How did Adani became Adani as we know now? ऐसा क्या कर रहा था अडानी which went right for him? अडानी कोई जानता नहीं था बिफोर 2019. नो वन हैड एवर हर्ड ऑफ अडानी. ठीक है. 2019 थोड़ा बहुत कुछ 2015 16 में. बिफोर दैट nobody even knew who Adani is. What went right for Adani? Apart from people saying BJP government, but there must be something right, something which he has done right. क्या लगता है आगम और what he has done right? सर उसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिले थे पोर्ट्स वगैरह के, उस वजह से मतलब He अ, always worked with the government. Okay. ये बहुत स्मार्ट टेक्निक होती है अपना रेवेन्यू एकदम से एक्सपैंड करने के लिए. Because when you are working with the government, when you are taking projects that the government wants, उसका कोई बिजनेस उठा के देख लेना. अडानी पोर्ट्स ने जब बनाया था, when Indian government was in desperate needs of having Indian ports, because जो foreign ports होते थे वहां पे क्या होता था कि यार हमारा माल रुक जाता था. We had to pay a huge cost which was a burden upon the foreign reserves. So Indian government was in need of Indian ports. So he did that. When he did Adani Green and Adani Energy, it was done with the objective कि यार solar energy आने वाले time में expand करने वाली थी. And that's why he took up on these projects. So whenever he took upon something, he took upon it with a very simple objective कि भैया गवर्नमेंट को क्या चाहिए मैं तो वो करके दे के निपटा देता हूँ. And that is very clear and that is typical Adani. And that is how Adani became Adani. So whenever you are analyzing a business, always see कि यार उसका उस पर्टिकुलर इकोनॉमी ज्योग्राफी या एरिया जहाँ पे बिजनेस वो काम कर रहा है उसके बाद रिक्वायरमेंट कितनी है. ठीक है. If I ask you, why did Zomato became Zomato in India? Or let me paraphrase the question again. So imagine that, unfortunately, I'm the Prime Minister of Pakistan, and you guys are the CEO of Zomato. Okay, Mr. Dipinder Goyal. Okay. So I come to you guys and ask, yeah, please start Zomato in Pakistan. Okay. Now, from a business perspective, you have to answer this question. Will you agree to this? Will you disagree to this? What would be your answer? सर एग्री. Agree. Why? Why, Morgan? सर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए. Yeah. Okay. But now let's go one layer deeper. Do you think a business like this can expand in Pakistan? नो Why? सर वहाँ पे लोगों की अर्निंग वगैरह वो ज्यादा सही नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा बेटर नहीं है, इस वजह से लोग ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते। लोगों के खाने पीने के लाले हैं तो वहां पे हाउ विल पीपल अफोर्ड टू ऑर्डर फूड ऑनलाइन. ठीक है. वहां पे लोग आटे दाल के लड़ाइयां कर रहे हैं लिटरली. देन इन दैट केस हाउ विल दे सर्वाइव इन दोज काइंड ऑफ कंडीशंस? सो मे बी जोमैटो कैन नॉट डू वेल इन पाकिस्तान. But then the question comes, what are the things in India which led to the growth of Zomato? और why did Zomato become Zomato in India? इंडिया के क्या फैक्टर्स है जो जोमेटो की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं? कैन यू पॉइंट इट आउट? ऐसा क्या है इंडिया में? तो लोगों की सैलरीज बढ़ रही थी, लोगों के रहने का तरीका वगैरह सब बढ़ रहा था, तो साथ इंक्रीजिंग में पर जोमेटो कैपिटा भी ग्रो इनकम, किया। या increasing per capita income, increasing MNC culture, that could be another thing, right? Makes sense. Anything else which we are missing out, which are very big structural changes? Yes, Morgan. Population is huge. Sorry. Population is huge in India. पॉपुलेशन इज ह्यूज. यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. डेमोग्राफिक हमारे आई थिंक इतना एक स्टैट आता है 65% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35. सो वी हैव अ ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड. आई डोंट नो हम उसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे. दैट इज अनदर क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड. बट वी हैव अ गुड डेमोग्राफिक डिविडेंड. ठीक है. मेक सेंस. एब्सोल्युटली बैंग ऑन. एनी अदर पॉइंट व्हिच कम्स टू योर माइंड? और कैसी चीजें हैं? देयर आर फ्यू स्ट्रक्चरल थिंग्स यार. ये सब चीजें तो बहुत पहले से भी थी. बट लास्ट 10-15 years में ऐसा क्या हुआ है विच हैज एक्चुअली लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया और ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया?
there's something very particular which you're missing. डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने लग गई। हाँ, which we discussed कि यार पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। इसके अलावा So online payments. very good. Online payments, UPI. So I personally can vouch for it. I was in college in 2015, 2016. Zomato was almost 3, 4 years old at that time. ठीक है। सो हमारे टाइम में क्या होता था ना कि जोमेटो वाले भैया आते थे, नीचे आते थे, उनको कैश में पे करो, वो कैश में वो नाटक वाटक करते थे, हम भी उसे झड़ लगड़ते लड़ते झगड़ते थे कि भैया चेंज तो दो, और ऐसे करके 10, 15 मिनट खराब करके एंड फिर वो भैया जाते थे। और दूसरा ऑप्शन होता था कि भाई आरटीजीएस करो, तो 200 रुपए की आरटीजीएस इतने में करूंगा मैं, एंड उस टाइम आरटीजीएस पे भी चार्जेस लगते थे छोटे मोटे, आई थिंक कुछ 1 रुपया 2 रुपये कुछ ऐसा समथिंग था। तो वो करूंगा, उससे बढ़िया था कि भाई कैश ही दे दूं उनको भैया को। देन हैपेंड 2016। 2016 में क्या हुआ? Demonetization. People started adopting online payments. Then happened Corona, which accelerated this process of online payments, and UPI became a thing across India. ऑनलाइन पेमेंट्स में बहुत जल्दी एक्सेलरेट करा। दिस वन मोर थिंग विच वी आर मिसिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2016 में एक और कोई चीज हुई थी। इंटरनेट बढ़ने लग गई। वेरी गुड, इंटरनेट। डू यू नो इंडिया हैज द चीपेस्ट इंटरनेट अवेलेबल इन द वर्ल्ड? सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे देश में मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस नाउ यू नो, मुकेश, सुरेश, रमेश कोई गांव में बैठ के कुछ भी चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, एंड दैट इज एक्चुअली helping us reach to the tier 2, tier 3, tier 4 cities of India, which is helping these companies expand their customer base and grow their business across. और यही रीजन है कि जोमेटो was able to become Zomato in India. So इकोनॉमिक एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के लिए करना। इट गिव्स यू एन आइडिया कि यार वो बिजनेस चल सकता है या नहीं चल सकता। ठीक है। सो हॉलिस्टिक स्पेस में वैसे देखना पड़ता है। सो दैट इज इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है। फिर आता है इंडस्ट्री एनालिसिस। ठीक है। इंडस्ट्री एनालिसिस का मतलब ये है टू एनालाइज क्या वो इंडस्ट्री के कोई ऐसे फैक्टर्स हैं विच कैन एक्चुअली प्रोपेल द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ठीक है। मैं हमेशा जैसे एवर सिंस वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सेक्टोरल एनालिसिस इन टेक्निकल, मैं हमेशा बोलता था कि भैया अगर सेक्टर ग्रो कर रहा है तो कंपनी अपने आप ग्रो करेगी ही करेगी। when one sector starts working, the across all the sector starts performing really well, and that happened in the case of Zomato also. Zomato को देखो, अभी देखना आप, one thing which is happening right now, Zomato and Swiggy are performing together। ठीक है। दोनों साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं। एंड स्विगी का तो जब से आईपीओ आया है उसके बाद से स्टॉक प्राइस गिरा ही नहीं है, ऐसा लगता है। द स्टॉक हैज बीन फिनोमिनली डूइंग वेल। व्हाई? बिकॉज अभी क्विक सर्विसेज, ये ऑन डिमांड सर्विस का बहुत स्कोप है। ठीक है। लोगों को जल्दी चाहिए सब चीजें, एंड दैट इज हाउ द बिजनेस एक्सपैंडिंग, द रेवेन्यू इज ग्रोइंग, द पैट इज स्टिल नॉट कमिंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज स्टिल नॉट कमिंग, yet the business is growing. So that is why the business is accelerating so fast। ठीक है। सो इंडस्ट्री एनालिसिस करना बड़ा जरूरी होता है टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ इंडस्ट्री टू ग्रो इन द कमिंग टाइम्स। एंड देन कम्स द कंपनी एनालिसिस। ठीक है। कंपनी एनालिसिस फाइनल पार्ट होता है जहां पे हम ये देखते हैं कि यार कंपनी के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं विच कैन हेल्प अ कंपनी ग्रो। कंपनी एनालिसिस हम करते हैं ना, तो कंपनी के 3 चीजों में फोकस करते हैं सबसे ज्यादा। एक होता है बैलेंस शीट, एक होता है पीएनएल, और एक होता है कैश फ्लो। ठीक है। ओके। इफ आई आस्क यू गाइस कि मैंने आपको तीनों स्टेटमेंट दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, आप कौन से स्टेटमेंट को पहले देखना प्रेफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। आगम, व्हाट डू यू थिंक, किसको देखोगे सबसे पहले? सर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आगे अपन आंसर करेंगे, उससे पहले मैं एक और सवाल पूछता हूँ आपसे कि अगर आज हम ये कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अ बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट। वन प्रॉफिट। ठीक है। ओके। देन इट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई भी बिजनेस जो होता है ना, वो डिविडेंड कहाँ से देता है? वेयर डज द कंपनी पे इट्स डिविडेंड फ्रॉम? टू इट्स प्रॉफिट। टू इट्स प्रॉफिट, है ना? मॉडल, यू आर इन विच क्लास? क्लास 11। क्लास 11। ठीक है। अभी तक ये पढ़ा होगा हमेशा कि डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, करेक्ट? यस सर।
चलो आज इस पूरे मिथ को ब्रेक करेंगे, ठीक है। उधर पहुंचने से पहले एक बार गियर थोड़ा धीरे मारते हैं, एंड लेट्स गो ऑन दिस वेबसाइट जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, screener.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे प्लीज जाइए। एंड अब यहाँ इस वेबसाइट पे जाके आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जस्ट गिव मी अ थम्स अप। वंस यू लॉग्ड इन, जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई नो कि वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। ऑसम, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करना है आपको जोमेटो। जोमेटो खोलोगे तो ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे मेरे रेशियोज कुछ अलग आ रहे होंगे, आपके कुछ रेशियोज अलग आ रहे होंगे, उसका रीजन बताऊंगा, चिंता मत करना। यहाँ पे जोमेटो का नाम लिखा आ रहा है, ये इसकी प्राइस है, 1 फरवरी को जो क्लोज हुआ उस पे ये प्राइस थी। अब यहाँ पे जोमेटो के बारे में आ रहा है, जोमेटो के बिजनेस के बारे में अच्छा, व्हाट इज द रेवेन्यू मॉडल ऑफ जोमेटो? जोमेटो कैसे पैसे कमाता है? फ्रॉम व्हाट ऑल सोर्सेज जोमेटो अर्न्स मनी फ्रॉम? प्लेटफॉर्म पे डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस और रेस्टोरेंट के कमीशन से। रेस्टोरेंट से कमीशन से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द मेन कोर बिजनेस और क्या, और किससे कमाता है? हम भूल रहे हैं कुछ। जोमेटो पे आप खोलो भी फालतू बात। देयर इज वन बिजनेस, एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट ठीक है, बट देयर इज वन मोर बिजनेस व्हिच इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है अभी जोमेटो का। एक रेवेन्यू सेगमेंट अपन मिस कर रहे हैं। ब्लिंकिट। ब्लिंकिट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स फॉर जोमेटो। जोमेटो एक्वायर्ड ब्लिंकिट फ्रॉम ग्रोफर्स, ठीक है, एंड एडेड इट एज अनदर बिजनेस टू कॉम्पीट अगेंस्ट स्विगीज इंस्टामार्ट, ठीक है। उससे compete करने के लिए उन्होंने उसको लॉन्च किया, ब्लिंकिट को, एंड नाउ दे आर रनिंग इट टुगेदर, capitalizing on the delivery network which they have across the country, ठीक है। So that is another very important revenue segment for Zomato. Now why we are discussing this, I'll come to that, वो बताऊंगा मैं। अभी बस ये फ्रेमवर्क पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे समझते हैं चीजें क्या है। जोमेटो का मार्केट कैप कितना है? हाई 2.25 लाख करोड़ का। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज का तो मार्केट कैप नहीं होता हो तो, बट जोमेटो का मार्केट कैप है 2.25 लाख, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं स्विगी का चेक करूँ, स्विगी का है 1,000 करोड़, ए सॉरी 1 लाख करोड़ का, ठीक है, विच इज ऑल्सो क्वाइट गुड। चलो वापस जोमेटो पर आता है। तो जोमेटो का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़, ठीक है। यहाँ पे है जोमेटो की कहानी, उसकी प्राइस, उसके इंपॉर्टेंट ईएमएस वगैरह सबकी स्टोरी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है इसका पीयर कंपैरिजन, ठीक है। ये जोमेटो के बाकी प्लेयर्स कैसे हैं देखो। अब यहाँ पे देखो, जोमेटो का प्राइस है 236, मार्केट कैप है 2.25 लाख। 435 मार्केट कैप है 97,000। और यहीं पे हम देखिए सेल्स, तो जोमेटो की है 5,500 करोड़, स्विगी की ऑलमोस्ट क्लोज है 3,600 करोड़, ठीक है। बट स्टिल स्विगी इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और इन बात करा जाए कंपेयर टू जोमेटो इज व्हाट आई फील, ठीक है, गिवन द मार्केट कैप। Although rest of the financial ratios are not very well in case of Suki, बाकी ratios इतने अच्छे नहीं है शायद, ठीक है। नाउ कम्स द क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपका पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ कम्स द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज देयर फॉर यू, व्हिच इज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है ना, वो आपका पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। The profit and loss statement starts with a basic description of sales, ठीक है, जो आपकी इसे हम बोलते हैं टॉप लाइन, दिस कॉल्ड एज टॉप लाइन, ठीक है। सेल्स के बाद आता है आपका, अच्छा,
मॉडर्न सेल्स के बाद क्या आता है बेटा, पढ़ा हुआ 11th में? सेल्स के बाद आता है सीओजीएस, सेल्स माइनस सीओजीएस। इससे आपका निकलता है, क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जो बेसिकली मैं हर प्रोडक्ट बना के जो बेच रहा हूँ उस पे कितना मार्जिन कमा रहा हूँ, दैट इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। कोई भी एक बिजनेस होता है ना, इट विल ऑलवेज ट्राई टू ईदर कीप इट्स ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल, और इट विल एटलीस्ट ट्राई टू इंक्रीज इट्स मार्जिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये हर बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, पहली चीज। आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, देन द कंपनी डिडक्ट्स ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कि यार वो सेल्स करने के लिए, वो बिजनेस चलाने के लिए जो भी मेरे खर्चे हुए, सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जैसे आप SGA बोलते हो, वो सब माइनस होते हैं। और फिर इससे आता है आपका एबिटा। ठीक है, इससे आता है आपका एबिटा। यहाँ तक सब फॉलो कर पा रहे हैं क्या? एबिटा। मॉरन, एंड आउट। सर नेट प्रॉफिट आता है ना? अभी नहीं आता वो, ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके अभी एबिटदा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, अब एबिटदा में से माइनस करते हैं हम डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर आता है हमारा एबिट। दिस इज एबिट। एबिट का मतलब होता है, ये होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसके लिए ये बताते हैं भाई धंधे से आपने कितना पैसा कमाया, वो होता है आपका एबिट। ठीक है, फिर एबिट से आप इंटरेस्ट, इससे से आप इंटरेस्ट काटते हो, ताकि आपका निकल के आता है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। और फिर इसमें से आप माइनस करते हो टैक्स, फिर निकल के आता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज पैट। ठीक है, ये होता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और क्लियर, इस तरीके से आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्लो करता है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जैसे ये लोग तो क्या थोड़ा सा अपना शॉर्टकट में एक तरीके से दिखाते हैं, तो जनरली पूरी चीजें फॉलो नहीं करते उनसे। ठीक है, बट दिस इज हाउ एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्लोस। ये आपका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट एक्चुअली ऐसा बनता है। ठीक है, सेल्स माइनस यूजीएस इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस के उससे एबिटा आया, फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हटाया, फिर एबिट आया, एबिट में से इंटरेस्ट हटाया, EBT आया, उससे टैक्स हटाया, फिर आता है ये होता है आपका नेट प्रॉफिट या अर्निंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वार्टरली अर्निंग्स दी गई है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को हर क्वार्टर अपने फाइनेंशियल्स रिपोर्ट करने पड़ते हैं। इफ यू सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रेवेन्यू है वो तो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हम प्रॉफिट पे आते हैं। प्रॉफिट कभी इंक्रीज करा, कभी डिक्रीज करा, और इस बार तो बहुत ही खराब क्वार्टर गया है एज फार एज जोमेटो इज कंसर्न। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी जो स्टॉक प्राइस थी वो 300 रुपये से 210 पहुंच गई थी बिफोर द बजट केम इन। ठीक है, 210 220 पहुंच गई थी। दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज ऑफ वेरी वेरी पुअर फाइनेंशियल्स। ठीक है, नाउ दिस इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आते हो कि बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में होता है आपका इक्विटी कैपिटल। बैलेंस शीट बेसिकली बेसिक इक्विटी फॉलो करती है, विच इज एसेट इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, और एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। ना इस इक्वेशन को समझने के लिए ना कोई रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल धंधे वाले लॉजिक से सोचो। आज भाई मुझे कोई बिजनेस चालू करना है, मान लो मुझे ये बॉटल बनाने की फैक्ट्री चालू करनी है। ठीक है,
अभी जो बॉटल बनाने की फैक्ट्री चालू करनी है, तो भैया मुझे ये पता है कि धंधे के लिए कुछ तो खुद का पैसा लगेगा, ठीक है, और कुछ मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। तो जो खुद का पैसा लगेगा वो होता है मेरा इक्विटी। जो मुझे मार्केट से बोरो करना पड़ेगा वो क्या होगा, मेरा लायबिलिटी। सो एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। ठीक है। अब इसी इक्वेशन में पूरी बैलेंस शीट बनी हुई होती है आपकी। ठीक है। तो इक्विटी कैपिटल वो होता है जो आपने अपनी जेब से पैसा लगाया होता है या आपके इन्वेस्टर से पैसा लगाया होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मार्च 18 तक ये केवल 3 लाख था, ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो हो गया था। तो ये सडनली जंप क्यों आया मार्च में, इसमें कोई बता सकता है? व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस जंप? कोविड-19 बढ़ गया था इसलिए। बट शेयर कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा उससे? तो सर न्यू शेयर इशू किए थे, क्या वो होते हैं? शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने। न्यू शेयर्स क्यों इशू करेंगे? ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी तो। नहीं, बेसिकली इस टाइम 2021 में क्या आया था कंपनी का आईपीओ। तो यू आर पार्शली राइट, शेयर्स नए इशू इशू करे थे, बट दोज आर इशूड बिकॉज ऑफ द आईपीओ। ठीक है, तो नए शेयर जो इशू करे तो उसकी वजह से शेयर कैपिटल बढ़ा, और शेयर कैपिटल बढ़ा, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग अ ह्यूज इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी टू 764। ठीक है। फिर आता है रिजर्व। अच्छा अब ये बताओ कि ये रिजर्व एंड सरप्लस इतना शूट अप कैसे कर गया यार? कंपनी तो प्रॉफिटेबल ही नहीं है। भाई कंपनी का जो प्रॉफिट होता है दैट इज पुट इन रिजर्व्स, बट कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल। बट देन हाउ कम दे हैव सच ह्यूज रिजर्व एंड सरप्लस? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, बता सकता है? Warren, the answer is in your 11th class accounts book. एक चैप्टर पढ़ा होगा शेयर कैपिटल वाला, पढ़ा है मॉरन? सर शेयर कैपिटल का तो अभी नहीं पड़ा। यार 11th में आता है या शायद 12th में आता होगा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। चैप्टर। शायद 12th में होता होगा। ठीक है। बट उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो भी शेयर कैपिटल का प्रीमियम आता है, मतलब कि यार लेट से 10 रुपए का शेयर था, है ना, फेस वैल्यू हर शेयर की 10 रुपए होती है, और जोमेटो ने शेयर की लिस्टिंग करी लेट से 80 रुपए पे, तो 70 रुपए प्रीमियम हुआ। पहले ये समझ में आया क्या मॉर्गन, आगे क्लियर? सर ये एक बार सर। रिपीट। हाँ, देख मान ले कि शेयर 10 रुपए का था, फेस वैल्यू 10 रुपए शेयर की, और उसकी मार्केट वैल्यू 80 रुपए है, तो प्रीमियम कितना हुआ, 70 रुपए हुआ। यस। तो जो 70 रुपए जो प्रीमियम होता है ना, वो ट्रांसफर किया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। इसलिए आप देखोगे जोमेटो का हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस क्या रहा, पॉजिटिव, ऑल्दो कंपनी लॉस में। क्या? सो दिस इज योर इक्विटी पार्ट। क्लियर है आगमन, आगमन मॉर्गन? ये सर। मॉर्गन कंफर्टेबल? मॉर्गन आर देयर? यस। दिस इज द इक्विटी पार्ट। देन कौन सा? लाइबिलिटी पार्ट। लाइबिलिटीज में आती है बोरिंग्स। ठीक है, द मनी विच यू हैव बोरोड। अब वो बोरिंग्स अभी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म हो सकती है। देन अदर लाइबिलिटीज, दैट टोटल मेक्स अप द लाइबिलिटी पोर्शन। सो इक्विटी इज डन एंड लाइबिलिटी इज डन। देन कम्स द एसेट पार्ट। एसेट में आते हैं फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, व्हाई डज जोमेटो हैज सच स्मॉल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? इतना छोटा सा क्यों है, 59 करोड़ मात्र? वो भी अब होने लगा 18 करोड़, 7 करोड़। Why such small amount? Think. देखो उसका रीजन है बिकॉज जोमेटो खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो दूसरा का प्रोडक्ट लेके बेचता है। ठीक है, इट्स अ एग्रीगेटर, इट डजंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग। तो सर ये दैट्स व्हाई 7 से 59 कैसे हो गया? हाँ, एक साल में ये 7 से 59 कैसे हो गया? देख उसका रीजन ये हुआ है, एक साल में नहीं बल्कि 2 क्वार्टर, मार्च 2023, फिर मार्च 24, और इस सितंबर।
ऑलमोस्ट 1.5 साल, 1.5 साल। ठीक है। देख उसका रीजन ये है बिकॉज अब क्या हो गया, इन्होंने चालू क्या कर दिया, ब्लिंकिट। तो ब्लिंकिट पे कुछ स्टोर ये खुद के भी रखने लग गए। उसकी वजह से क्या हुआ, इनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये कुछ माल खुद का भी रखने लग गए। उसकी वजह से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करा। ठीक है, यू माइट सी इट इंक्रीजिंग फॉर द इन द कमिंग क्वार्टर्स एज वेल। ठीक है, चलो। Then there are investments which they have done and other assets which totally makes up your balance sheet, and as we discussed, assets equal to capital plus liability. ठीक है। Then comes the next part which is the cash flow। ठीक है। अब कैश फ्लो के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये बताता है कि भाई धंधे से, बिजनेस ने कितना कैश जनरेट करा है। ठीक है। सो आपको ना कभी भी किसी बिजनेस को इवेल्युएट करना हो तो हमेशा देखा करो कि जिस पेस पे नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है उसी पेस पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आर आल्सो ग्रोइंग एंड द नेट प्रॉफिट इज आल्सो ग्रोइंग, दैट मीन्स कि बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। और लेट्स से कि जितना नेट प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है उतना ही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स द बिजनेस डूइंग गुड। बट अगर ऐसा है कि उल्ट ऊपर नीचे चल रही है बात, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कम है और नेट प्रॉफिट ज्यादा है, तो दिक्कत हो सकती है। वो दिक्कत कैसे हो सकता है मैं बताऊंगा, अभी एक मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो। देन सर्टेन रेशियोज आर देयर व्हिच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, मतलब आज नहीं डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास के लिए। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है। अच्छा मैं पूछूं कि कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा किसको पता होता है, हु नोज द मैक्सिमम अबाउट अ कंपनी? promoters and owner company. तो इसलिए प्रमोटर को पता होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रमोटर को पता होता है। और उसके बाद पता होता है कुछ पावरफुल इन्वेस्टर्स को, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो होते हैं हमारे ये लोग, फी वाले लोग, एफआई वाले लोग। ठीक है, सबसे ज्यादा इनको पता होता है। बाकी सब, मतलब फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, बाकी सब बावड़े होते हैं इस मार्केट में, जो बस कोशिश कर रहे होते हैं मार्केट में कुछ ट्रेड करने की। ठीक है, द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इज हेल्ड बाय द प्रमोटर एंड द एफआईएस। रेस्ट ऑफ रेस्ट आर जस्ट पीपल इन द मार्केट, जस्ट न्यूज, जस्ट नॉइस इन द मार्केट। ठीक है, so that is what happens in the company. So whenever you see a stake of FIS strangely falling in a company, जैसे यहाँ पे देखो 52% से कितना हो गया, 47%, दैट इज एन इंडिकेशन कि भैया कुछ तो दिक्कत है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 54% था, यहाँ पे कितना था, 55%। मार्च 24 तक लास्ट बढ़ाया, उसके बाद जून में बेचा। ठीक है, सितंबर में बेचा और दिसंबर में बेचा। ये प्रॉब्लमैटिक होता है। और अब देख लेना, ये हो रहा है ऑलमोस्ट जून से तो मुझे याद है 300 रुपये से ऊपर जोमेटो जा नहीं पा रहा। ठीक है, so this is a problematic zone actually. So ideally we should be very watchful under these circumstances in the market. ठीक है, so अगर ऐसा किसी भी स्टॉक में हो रहा होता है कि एफ आई एस कंटिन्यूसली पोजिशन काट रहे होते हैं ना, इसका मतलब है कुछ झमेला होने वाला है। बिकॉज दीज आर वेरी शार्प पीपल, एफ आई एस आर द मोस्ट शार्प पीपल इन द मार्केट। ये कोई भी जगह अपना पैसा ऐसे नहीं डालते। ठीक है, whenever you see public holding or FI holding increase in the market, that's a sign कि भैया कुछ दिक्कत हो रही है। जब भी एफ आई एस अपनी डिक्रीज करें होल्डिंग और प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज करें, वो एक अच्छा साइन होता है। बट जहां पे एफ आई एस होल्डिंग कम कर रहे हैं, पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही हो, वो बहुत दिक्कत वाला जोन होता है। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चन एनीवन? सर एफआईआईस कंट्री में भी नहीं होते, जिस कंट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है हाँ, उसके बाद भी सर डीआईए से ज्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास कैसे रहती है? देख बेटा, डीआईएस जो होते हैं ना, डीआईएस होते हैं घर के बड़े बेटे। ठीक है, तो जो घर का बड़ा बेटा होता है उसको तो क्या करना होता है, सबको संभालना होता है। तो मार्केट को गिरने से बचा कौन रहा है इस टाइम पे? डीआईआईस। यस, ये मैं तो खुद सोच, बजट से पहले $500 million हर दिन बिक रहा है, मजाक चल रहा है क्या? $500 million किसे कहते हैं? एक दिन में इतने से मार्केट में जिसमें 10% पार्टिसिपेशन है लोगों का, वहां पे $500 million बेच रहा है एफआई।
हर दिन बैठ के। और वहां जब बेचते हैं ना तो वो ये नहीं देखते कि क्या भाव आ रहा है, वो बेचने लगता है मार्केट में। तो इट्स नॉट अ जोक एंड पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इट। एंड दैट्स व्हाई आई वाज सो मच वेहेमेंटली गोइंग फॉर बजट, कि भाई बजट, एक गुड बजट बड़ा जरूरी है टाइम पे, which is somewhere not there obviously, but let's see how things unfold. ठीक है। So this is about the shareholding pattern. And FIS को क्या होता है ना, FIS देखो, मनी ब्रिंग्स एवरीथिंग इन द लाइफ, इन योर लाइफ। वो इंफॉर्मेशन भी लेके आएगा, वो पावर भी लेके आएगा। सो इवन इफ यू आर देयर और नॉट देयर, द थिंग शैल हैपन। ठीक है। देन कम दीज कॉन कॉल्स। पर्सनली आई वुड 100% रिकमेंड, अगर आपका समय है, यहाँ पर जाके इन कॉन कॉल्स को, इन ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ो। Some of my very good investments have come with the help of these con calls. I cannot attend it, मैं केवल जाके ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेता था। Used to save a lot of time, used to give me good insight, and मैं हमेशा मानता हूँ कि कई बार पढ़ने से ज्यादा ये जो डिस्कशन होता है ना, इनमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकल जाती है कंपनी की। क्योंकि यू कैन एस्केप बाय आंसरिंग एंड टाइपिंग, बट यू कैन नॉट एस्केप समवन इन पर्सन। ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है किसी को इन पर्सन एस्केप करना। सो दैट इज इट। ठीक है। चलो, अब आता है हमारे क्वेश्चन पे जो हमने डिस्कस किया कि वेयर डज अ कंपनी पे इट्स डिविडेंड फ्रॉम। आप सबका आंसर था प्रॉफिट। मैंने बोला कि यार व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर डूइंग अ बिजनेस, आप सबने बोला प्रॉफिट। अब एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आगम ने एक घड़ी बनाने का बिजनेस चालू करा है। ठीक है। सो आगम हैज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वॉचेस। तो लेट्स से आगम ने सोल्ड वन वॉच फॉर 200 रुपीज, कॉस्ट इज 100 रुपीज, प्रॉफिट इज 100। ठीक है। अब मेरे दो सवाल है आपसे। आगम का बैंक बैलेंस कितना होगा, और आगम डिविडेंड दे सकता है क्या, यस और नो। एक घड़ी बनाई और बेची, लागत 100 रुपए, सेलिंग प्राइस 200, प्रॉफिट 100। मेरा आपसे सवाल ये है कि बेटा उसका बैंक बैलेंस में कितना पैसा होगा, और आगम इस प्रॉफिट के बेसिस पर डिविडेंड दे सकता है, यस और नो। तो बैंक बैलेंस में तो 100 होगा। शाबाश, ठीक है। डिविडेंड दे सकता है, यस सर। डिविडेंड दे सकता है ना। चलो, नाउ अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो आगम ने बोला कि यार ठीक है, इस बार एक और, अब इस साल पूरे साल मेहनत करके इसने एक और घड़ी बनाई और एक और घड़ी बेची। बट आगम ने वो घड़ी बेची मुझे। ठीक है। अब मैंने बोला यार देख, मैं तो यार बहुत ही सिंपल आदमी हूँ, तो मेरे पास तो देख अभी तो इतना पैसा है नहीं, मैं तेरे को पैसा दूंगा इन मई 2025, मई 2025 में दूंगा। तो सोचा चलो ठीक है सर, आपको कैसे मना कर सकता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो 31 मार्च 2025 को आगम भैया, आगम जी, आगम जी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है। अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर रहे हैं। पूरे साल में एक घड़ी बेची है। अब मुझे बताओ, आगम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेवेन्यू कितना होगा, कौशल भी तो रेवेन्यू, जो उसने मुझे बेचा उसका रेवेन्यू कितना होगा उसको। मानो 200 रुपये में बेची है मैं घड़ी, मॉरल रेवेन्यू कितना होगा, आगम रेवेन्यू कितना होगा। मैं पेमेंट इसको मई 2025 में करूंगा। जीरो। हाउ मच है। ओके। मॉरल कितना रेवेन्यू होगा। कैसे? रेवेन्यू कितना होगा। एक घड़ी बेचने हम्म। और टू मैं हंड्रेड पेमेंट मई 2025 में कर रहा हूँ, बट
जीरो होगा अभी तो। यार कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ा? कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, बोथ आर कॉल्ड एज सेल, करेक्ट? तो चाहे मैंने उधार में माल दिया हो या उसमें उस पे हाथों हाथ में कैश मिल गया हो, दोनों ही सेल माना जाता है। तो रेवेन्यू तो अभी भी कितना होगा मेरा? 200 ही होगा। आगे मोर एंड क्लियर ये चीज, यस सर। है ना? 200 रुपये रेवेन्यू हुआ, कॉस्ट मेरी 100, प्रॉफिट कितना होगा मेरा? प्रॉफिट कितना होगा? 100। 100, शाबाश। मुझे ये बताओ, बैंक बैलेंस कितना है मेरा? सॉरी, आगे में बैंक बैलेंस कितना है? 200 पहले का था वही। वो तो हो इसमें गया, तो वो तो प्रीवियस ईयर खत्म जीरो। हो गया, मेरे को अभी अभी का होता है। बैंक बैलेंस है जीरो। जीरो। बैंक बैलेंस इज जीरो, ठीक है। अब बैंक बैलेंस जीरो है, ठीक है। अब मुझे बताओ, आगम डिविडेंड दे सकता है क्या? नो सर। बट आपने तो बोला था कि डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट तो है बुक्स में, डिविडेंड क्यों नहीं दे पा रहा? सर बैंक में नहीं है ना प्रॉफिट, क्रेडिट उसमें हो एग्जैक्टली। गया वो तो। कि भैया, हाथ में कैश चाहिए, मैं बुक्स में प्रॉफिट का क्या करूंगा? बुक्स में तो मैं 1,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दूं, क्या फर्क पड़ता है? सबको उधार में माल बेच के आ जाऊं, पूरी दुनिया को। बट फायदा क्या उसका? देयर शुड बी सम कैश रियलाइजेशन। सो एक मैं हमेशा लाइन बोलता हूँ जो बहुत हेल्प करती है एक अच्छे बिजनेस को ढूंढने में, वो होती है, प्रॉफिट इज वैनिटी, कैश इज सैनिटी। वैनिटी का हिंदी में मतलब होता है घमंड। सो प्रॉफिट केवल घमंड करने के लिए अच्छा है। अगर औकात देखनी है ना बिजनेस की, तो उसे कैश में दिखती है। ऑलवेज ऑलवेज लुक एट द कैश, कैश इज किंग। ये बात गांठ बांध लेना, कभी गंदा धंधा नहीं मिलेगा, कभी बकवास बिजनेस आप फिल्टर आउट नहीं करोगे। And that is what separates good investor from bad investor. Ability to avoid all the noise regarding revenue, regarding profits. ये बता कि कैश कितना जनरेट करा धंधा में। And that is why all I said, अगर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, पीएनएल है, कैश फ्लो है, मैं सबसे पहले कैश फ्लो देखना पसंद करूंगा। एंड आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कैसा रिलेशन चल रहा है। And that is where we try to find out if the business is actually investable or not. Make sense? I hope you're able to follow. यस सर। I'll Okay. Now the question comes कि सर ये कैश को ढूंढे कैसे हैं? कैसे हम पता करें कि बिजनेस इन्वेस्टेबल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम? बिकॉज लाइक एवरीथिंग, our generation wants, your generation wants, we want everything quick. So quickness हम कैसे लेके आए? How do we figure that out? उसके लिए we'll do ratio analysis, और वो रेशियो एनालिसिस मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो उसी के साथ साथ मैं बताऊंगा कैसे आप ये सब चीजें फिगर आउट कर सकते हो। हाउ कैन यू बिल्ड समथिंग फॉर योरसेल्फ व्हिच कैन हेल्प यू फिगर आउट स्टॉक्स, ठीक है? चलो, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे नेक्स्ट वीक। बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू बोथ, प्लीज स्क्रीनर पे बैठो, चार्टिंग में बैठो, समय दो उसको, दिमाग लगाओ, ट्राई टू फिगर आउट डिफरेंट थिंग्स। ट्रेडिंग व्यू को जितना हो सके यूज करो। एंड अभी तो तुम लोग सब छोड़ दो, अभी तो 6 महीने केवल ट्रेडिंग व्यू पर मलंग हो जाओ एकदम। उससे तुम्हारा मार्केट व्यू बनेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये जो डूबता हुआ मार्केट होता है ना, ये सबसे अच्छा होता है एक बढ़ते हुए ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाने के लिए। चढ़ते हुए मार्केट में कोई नहीं कमाता है, डूबते हुए मार्केट में सब कमाते हैं। बहुत ही कॉन्ट्रा व्यू है, बट यही व्यू है हमेशा।
जब सब चीजें खराब हो रही होगी ना, तब भी कोई होगा समझदार इंसान जो उस टाइम मार्केट में रुका हुआ कमाए। ठीक है, तो प्लीज टेक इट एज अ वेरी गुड टाइम टू लर्न अबाउट द मार्केट्स एंड टू लर्न अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स. With that, let's close the session. Have a good day, guys. If you have any questions, you can ask.